الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان خلقه القرآن رواه مسلم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے. سب سے آخر میں جس کی باری آتی ہے ان کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا، آپ کے حوالے اور آپ کے گوشے گزار کچھ باتیں جو کی جائیں گی، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ آپ کے اخلاق کو اپنے اندر پیوست کرنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم تقبل یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسا سمندر ہے جس سمندر کی نہ تو کوئی تہ ہے اور نہ ہی کوئی کنارہ ہے. دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے سمندر مل جائیں گے. اس زمین پر، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، صرف اس زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیجئے. 3 حصہ اس زمین پر صرف اور کیا ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے. 1 حصہ خشکی ہے جس پر ہم اور آپ رہ رہے ہیں. تو اس زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے سمندر بنائے ہیں. آج انسان اتنا ترقی کر چکا ہے کہ اس سمندر کی گہرائی کو بھی ناپ چکا ہے.
समंदर कितना गहरा है, उसकी तह तक पहुंच चुका है, कितना चौड़ा है, उसकी चौड़ाई को भी नाप चुका है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा एक ऐसा समंदर है जिसकी तह तक ना तो कोई पहुंच सका है और कयामत की सुबह तक कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। आज से 1500 साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस हुए, उस जमाने से लेकर के और आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, आपके अखलाक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी तकरीरें हुई, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हुए, जलसे जुलूस आए दिन होते रहते हैं। आपके सामने जुमा के खुतबे के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, आपके अखलाक के बारे में बताया जाता है। दरसो तदरीस के अंदर भी आपको बताया जाता है। मैं कहता हूं इन सारी चीजों को उस जमाने से लेकर के आज तक सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए और अगर हम ये दावा करें कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुकम्मल कर दिया तो ये दावा गलत है। अगर हम ये दावा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को हम मुकम्मल तरीके से पढ़ लेंगे या समझ लेंगे, ये भी गलत है। अल्लाह तबारक ताला आए दिन इंसानों के दिलों में एक नई नई चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक डालता रहता है, नए नए इंकिशाफात हो रहे हैं और आए दिन ये सिलसिला होता रहेगा कयामत की सुबह तक। जब तक कयामत कायम नहीं हो जाती उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने ये मुनासिब समझा कि आज के इस खुतबे जुमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों के साथ हुस्ने सुलूक कैसा था, लोगों के साथ आपका रवैया कैसा था, इस पर रोशनी आपके सामने डाली जाए। सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि अखलाक का माना क्या होता है। अखलाक ये खुल्क की जमा है। खुल्क ये सिंगुलर वर्ड है, वाहिद जिसे कहा जाता है, और अखलाक ये प्लूरल वर्ड है, जमा। अखलाक के माने होते हैं, खुल्क के माने होते हैं आदत और अखलाक के माने आदात। इंसान जब इस दुनिया में कदम रखता है अपनी मां के पेट से इस जमीन पर जब वो आता है तो कुछ बातें वो अपने वालिदैन से सीखता है, कुछ आदतें वो माहौल के हिसाब से चलता है सीख करके, कुछ हालात और वाकयात को देख करके। पता ये चला कि इंसान के अंदर दो तरह की आदतें होती हैं, एक आदत होती है अच्छी और एक आदत होती है बुरी। अच्छी आदत सच बोलना, बुरी आदत झूठ बोलना। अच्छी आदत लोगों के साथ अदल और इंसाफ कायम करना, बुरी आदत लोगों पर जुल्म करना, और बहुत सारी आदतें हैं जो क्या है आप समझ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना, इससे पहले दो चीजों की कसम खा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या है गवाही दी है। आइए सबसे पहले उसी चीज से शुरुआत करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने भी गवाही दी, और इस कुरान ही के अंदर नहीं बल्कि जो पहली आसमानी किताबें हैं, तौरात को ले लीजिए, उसके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताया गया। सहाबे किराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में गवाही दी। अपने तो अपने थे, गैरों ने भी दिया। ये सारी चीजें क्या है आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह तबारक ताला ने सूरह कलम के अंदर दो चीजों की कसम खाई, उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताया कि आपका अखलाक कैसा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लाअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। कसम है कलम की और कसम है उन चीजों की जो फरिश्ते लिखते हैं। ऐ नबी, आप अपने रब के फजल से दीवाना नहीं हैं। ये मक्का वाले अगर कह रहे हैं कि आप दीवाना हैं, आप पागल हैं, तो इनको कहने दीजिए आपका रब ये कह रहा है कि आप दीवाना नहीं हैं।
आप पागल नहीं हैं। व इन्नका लाजरन गैर ममनून, और आपके लिए ऐसा अज्र जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। व इन्नका लाला खुल्किन अज़ीम, और आप इखलाक के बड़े पैमाने पर हैं, यानी आप सबसे बड़े इखलाक वाले हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसी हस्ती नहीं आई और ना आएगी क़यामत की सुबह तक जिसके अंदर वो इखलाक पाए जाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाए गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुछ लोग आए और पूछा कि अल्लाह आए उम्मुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, आपका इखलाक कैसा था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुल्कुहुल कुरान, आपका इखलाक कुरान था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दो टूक में जवाब दिया कि आपका इखलाक जो था वो कुरान था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कुरान करीम की अमली तफसीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता एक कुरान थे। कहा कि अगर तुमने कुरान को पढ़ा होता, कुरान को समझा होता तो ये सवाल ना किए होते। हजरत गिरामी, ये तो कुरान करीम के अंदर बयान किया गया कि आपका इखलाक कैसा था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो आपकी सबसे चहेती बीवी थी, और जाहिर सी बात है कि हमारे और आपके इखलाक के बारे में हमारा जो सबसे करीबी होगा वही जान पाएगा कि हमारा इखलाक कैसा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये साफ कर दिया कि आपका इखलाक कैसा था, आपका इखलाक और किरदार कैसा था, कुरान के जैसा था। जो कुरान के अंदर जो चीजें बताई गई हैं आपका इखलाक वही था। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और मैंने उनसे कुछ सवाल किए कि तौरात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात कैसे बयान किए गए हैं, आपका इखलाक और किरदार तौरात के अंदर कैसा था, कैसा बयान किया अल्लाह तबारक ताला ने। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह की कसम, जो चीजें कुरान के अंदर बयान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वही सारी चीजें क्या है तौरात के अंदर पाई जाती है। फरमाया अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना करके भेजा है। उसके बाद में फरमाया लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन बिल अस्वाक़, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो सख्त मिजाज थे, ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बद थे, यानी ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदमिजाज थे, ना तो आप सख्त थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजारों में चलते थे तो ऊंची आवाज से गुफ्तगू नहीं करते थे, जो भी कोई किसी को बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया करते थे बल्कि अच्छाई से उसका बदला दिया करते थे। मेरे भाइयों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे कि लोगों से अगर बात करते थे तो ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं करते थे। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यह तालीम दी कि हमारा यह अखलाक है और हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर दुनिया को चल करके दिखाएं कि हमारे नबी का जो अखलाक था वही हमारा भी है। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए तो गलियों में शोर हो गया, लोग शोर शराबा कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए हैं। वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि चलो मैं भी देख लेता हूं कि वो नबी कौन है जिन्होंने क्या है दावा किया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकलते हैं, कहते हैं जैसे मैंने अपने घर से निकला दूर से मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दूर से जब देखा तो मुझे ये पता चल गया, मुझे ये मालूम हो गया कि अल्लाह की कसम ये किसी झूठे शख्स का चेहरा नहीं है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो पहला कलमा निकला था और जो मेरे कान ने सुने थे वो ये थे, अफ़्शुस सलाम व अतीमुत ताम वसलुल अरहाम वसल्लु बिल लैलि वन नासु नियामुन तदखुलुल जन्नह बिसलाम।
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو میں نے سب سے پہلا جو جملہ سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ یہ تھا افشوا السلام، کہ اے لوگوں سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتوں کو منقطع نہ کرو، ایک دوسرے کے درمیان کیا ہے دشمنی کا وہ دیوار نہ کھڑو، اس کو گرا دو، ایک دوسرے سے مل کر کے رہو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ رات کے اندر سو رہے ہو تم رات میں اٹھو، اپنے بستروں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، نماز پڑھو، تدخلوا الجنہ بسلام، جنت کے اندر آسانی سے داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو پہلا جملہ میں نے سنا تھا یہی تھا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، رات میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھو، تہجد گزار بن جاؤ، یہ ساری چیزیں تم کر لے جاؤ، تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت کے اندر آسانی سے داخل ہو جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق میں دیا۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، خدام رسول کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال تک خدمت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، 10 سال خدمت کرنے کے باوجود جو 10 سال کا جو یہ لمبا وقفہ ہے، اس 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا کہ انس تم فلاں جگہ چلے جانا، میں نے زبان سے تو انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، ابھی وہ بچے تھے لیکن وہ اپنا بچپن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے انس تم فلاں جگہ چلے جانا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے زبان سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل کے اندر تھا میں جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت انس مالک کہتے ہیں اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر کے نکل پڑا۔ میں ایک بازار سے گزرا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کے ساتھ میں بھی کھیلنے لگا، اتنے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، پیچھے سے میرے گردن کو پکڑ لیا، میرے گریبان پیچھے سے پکڑا، میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا، مجھ سے یہ نہیں کہا اے انس جس کام کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا وہاں گئے کہ نہیں گئے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا انیس اذهبت حیث امرتک، اے انیس کیا تم اس جگہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے جس جگہ میں نے تم کو جانے کے لیے کہا تھا، وہاں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ حضرت انس میرے بھائی یہ تصغیر ہے، عربی جو لوگ جانتے ہیں انس کی تصغیر انیس، پیار سے پیارا لفظ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیارے انیس، اے میرے پیارے بچے کیا جس کام کے لیے میں نے تم کو روانہ کیا تھا وہاں پر پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف نہیں کہا، ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو فٹکارا نہیں، ان کو مارا نہیں، بلکہ پیار سے ان کو سمجھایا جس کام کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا وہاں گئے کہ نہیں گئے؟ حضرات گرامی، اسی طریقے سے اب آئیے میں آپ کے سامنے وہ واقعات رکھوں جو اخلاق حسنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اگر گفتگو کیا جائے تو میں کہتا ہوں پورا سال یہ خطبہ جمعہ چلتا رہے گا، لیکن آپ کے اخلاق کو کیا ہے کور نہیں کر پائیں گے۔ بس صرف اور صرف 2 اخلاق بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک عادت یہ تھی سچ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کیا کہ سچ بولیے۔ وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ وہ یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بادشاہ روم ہرقل کے پاس جو خط لکھا تھا اور جو سفیان نے جو گواہی دی تھی، جب ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کیا تم نے کبھی ان پر جھوٹ کا تہمت لگایا ہے، کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کے خلاف جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے؟ تو دشمن تھے، حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، انہوں نے سچ بتایا تھا، کہا تھا ہم نے کبھی ان کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی ہمیں تاکید کی ہے۔ آج ہم نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب سچ نہ بولے تو کموئی نہ چلے، سچ کے بغیر جھوٹ کے بغیر کیا ہے کام ہی نہیں چلتا ہمارا۔ میرے بھائی صحابہ کرام نے کس طریقے سے اس کام کو انجام دیا تھا؟
उन्होंने दुनिया में हुक्मरानी क्यों की थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना करके। वो वाकया मैं आपके सामने रखूं, याद रखिए। उस वाकये के अंदर यह बयान किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर, एक आदमी आता है, ईमान नहीं लेकर के आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है ईमान कबूल, इस्लाम कबूल करने के लिए आता है, कहता है ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल मेरे अंदर बहुत सारी बुरी खसलतें हैं, बुरी आदतें हैं, आपको एक शर्त मंजूर करना पड़ेगा, फिर मैं जाकर के इस्लाम कबूल करूंगा। मैं चोरी भी करता हूँ, जिना भी करता हूँ, डाका जनी भी करता हूँ, शराब भी पीता हूं, ये सारी बुरी खसलतें मेरे अल्लाह के नबी हमारे अंदर हैं जो पाई जाती हैं, और बहुत सारी खसलतें, बुरी आदतें जिसको मैं गिना भी नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है कि आप तुम एक वक्त इन तमाम बुराइयों को नहीं छोड़ना, बल्कि एक एक करके छोड़ना। जब वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी शर्त हमने मंजूर कर ली, लेकिन आपको हमारी शर्त भी मंजूर करनी पड़ेगी, और वो शर्त ये कि तुम अपनी जिंदगी में आज के बाद ये वादा मुझसे करो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। वादा कर लिया। अब जब वो चोरी, ये वाकया लंबा है, बस सिर्फ इशारा आपकी तरफ क्या है, इशारा करना चाहता हूं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अहद को उन्होंने अपने दिल में बसा लिया। जब चोरी करने के लिए जाते, कहते हैं कि अगर नबी कल मुझसे सवाल करेंगे कि चोरी किया था कि नहीं किया था, अगर मैं झूठ बोल दूंगा कि नहीं किया था तो झूठ हो जाएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद वो टूट जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, यानी दीगर जो उनके अंदर जो बुराइयां थी, उन एक एक बुराइयों को करते करते क्या है, वो सारी बुराइयों को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, तो हमें और आपको अगर सारी बुराइयों से बचना है तो आज से ये अहद करके उठिए कि आज से इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। हमारा नुकसान हो जाए होने दीजिए, खसारे का नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है। आज से ये अहद करके उठिए कि इंशाअल्लाह जिस काम को भी हम करेंगे उसमें सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से अबू जहल से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, तो अबू जहल ने कहा था, जो इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था, उसने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सच्चे इंसान हैं, बड़े मुत्तकी और बड़े परहेजगार आदमी हैं। तो उस आदमी ने कहा कि तुमने जब सच्चा मान लिया, सब कुछ मान लिया, तो फिर क्या उनकी रिसालत को क्यों नहीं कबूल कर रहे हो? उसने कहा यह मेरा जाती मामला है, अगर मैं उनकी रिसालत को कबूल कर लूंगा तो मेरी चौधराहट चली जाएगी, मेरी हुक्मरानी चली जाएगी, ये जो मेरी कुर्सी है ये नेस्त नाबूद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, मैं आपकी रिसालत को मान नहीं रहा हूं। जहां तक उनके मुतालिक वो आदमी कैसे इंसान है, तो यकीनन वो बड़े अच्छे इंसान हैं। ये अबू जहल ने गवाही दी। हजरत गिरामी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सिफत जो थी वो सच बोलना, दूसरी सिफत लोगों को माफ करना था, लोगों को दरगुजर करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। जब इस्लाम की बात आई फिर क्या है, आपने क्या है लोगों से बदला लिया, अपनी जात के तय कि लोगों ने आपको तकलीफ दिया, फिर क्या है उसको आड़े हाथ लेते हुए उसने हमारे ऊपर जुल्म ढाया, हमने भी उस पर क्या है उसके ऊपर जुल्म, मैं भी उसके ऊपर जुल्म ढाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं किया, लोगों को माफ कर दिया। आपके सामने चलिए थोड़ी देर के लिए ताइफ का सफर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कैसे माफ किया? मेरे भाइयों, नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे मुशफिक चचा अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे वफादार बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा भी इस दुनिया से चली जाती हैं, इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। उस साल को आमुल हुस्न का नाम दिया गया, यानी गमों वाला साल। मेरे भाइयों, उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लिए जाते हैं, लोगों को दावत तबलीग के लिए, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए जाते हैं। जब ताइफ पहुंचते हैं, ताइफ के मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने से और मानने से इनकार कर दिया, बल्कि वो बदमाशों को और ओबाशों को आपके पीछे लगा दिया। लोगों ने पत्थरों की बारिश कर दी, इतना पत्थर बरसाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून निकलने लगे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपको उठा करके एक बाग में लेकर के जाते हैं, वहां पर पानी छिड़कते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ये पत्थरों में रहने वाली कौम है, अल्लाह के रसूल, इनके दिल पत्थर हो चुके हैं, इनके दिल सख्त हो चुके हैं, ये कौम ईमान न लाने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल, आप इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए, इस बस्ती का नामो निशान मिट जाए, इन लोगों का वजूद खत्म हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन जख्मी हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया। मेरे भाइयों, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ करने के लिए उठाया होगा। नहीं मेरे भाइयों, बल्कि कुरान करीम ने इसको जिक्र किया। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया और उनके लिए दुआए खैर किया। अल्लाहुम्मा दी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह, ये कौम मेरे बारे में नहीं जानती, ऐ अल्लाह तू इसको हिदायत दे दे। शायद कि आप अब ये सोच रहे होंगे कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, तने तनहा थे, बेसरो सामान थे, बेसहारा थे, इसलिए अगर वो सब्र नहीं करते तो फिर करते क्या? मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब होश आया, जब लोगों ने पत्थरों पर बारिश आप पर की, एक फरिश्ता आया और कहा कि अल्लाह के रसूल, आप अगर हमें इजाजत दें तो इन बस्ती वालों को जिन्होंने आप पर पत्थरों की बारिश की है, जिन्होंने आपको खून से नहलान कर दिया है, अगर आप हमें इजाजत दें तो मैं इन बस्ती वालों को दो पहाड़ के बीच में रख करके मसल दूं, उनका खात्मा कर दूं, इनके निशान को मिटा दूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, अगर ये कौम, अगर ये लोग ईमान नहीं लेकर के आते तो कोई बात नहीं, इनकी आने वाली जो नस्ल है वो ईमान लेकर के आएगी। मेरे भाई, ये था आपका इखलास, माफ कर दिया। चाहते तो आप बदला ले सकते थे, चाहते तो आप उनसे इंतकाम ले सकते थे, लेकिन आपने दरगुजर कर दिया, उनको माफ कर दिया। इसी तरीके से तारीख इस्लाम का एक जबरदस्त वाकया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक यहूदी मेहमान बनता है। रात का वक्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इतना खाना खिला देते हैं, उसको पेट भर करके खाना खिलाते हैं, अपने बिस्तर पर सुला देते हैं। जिस बिस्तर पर कभी रहमतुल लिल आलमीन सोया करते थे, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस बिस्तर पर उस मेहमान को सुला दिया, उस यहूदी को सुलाया। रात का वक्त है, पेट उसका खराब हो गया, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर को गंदा कर दिया। मेरे भाइयों, सोने से पहले उसने अपने तलवार को अपने सिरहाने लटका दिया। रात के वक्त उसका पेट खराब हो जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर को गंदा कर देता है। रात के वक्त उठता है, मौत का अंदेशा उसको खौफ सताने लगता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उठेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जानिसार उठेंगे, तो मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये कत्ल कर डाले। इस खौफ को लेकर के उस बस्ती को छोड़ देता है, वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाकर के वो जो उसे अपनी तलवार याद आती है कि मैं तो तलवार ही भूल गया। अरब के जो लोग थे वो तलवार के बड़े शौकीन थे, तलवार के बड़े खूगर थे। उसने वो वहां खड़े होकर के वो आदमी सोचने लगा कि अगर मैं दोबारा लौटता हूं तलवार लेने के लिए तो हमारी जान चली जाएगी, लेकिन अगर वापस वहां नहीं जाऊंगा तो हमारी तलवार चली जाएगी। उसने खड़े होकर के ये सोचा और उसने ये फैसला किया कि मैं जाऊंगा तलवार लेने के लिए, जान चली जाए तो चली जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तलवार हाथ से नहीं जाने दूंगा। मेरे भाइयों, वहां से वो वापस होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है जहां वो सोया हुआ था। वहां जाकर के वो मंजर देखता है जिस मंजर का उसने कभी तसव्वुर तक भी ना किया होगा। उसने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर को अपने हाथ से धुल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, आप उस गंदगी को हाथ ना लगाइएगा, अरे अल्लाह के रसूल, उसको मैं धुल देता हूं। आपने फरमाया अबू बकर नहीं, ये तो मेरा मेहमान था, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके गंदगी को धुलूं। ये जुमला वो यहूदी सुन रहा था, इतना सुनना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वो चिमट जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मों से चिमट जाता है, ये ऐलान कर देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस्लाम कबूल कर लिया। यह आपका इखलाक था, आपने उसको डांटा नहीं, बस सिर्फ इतना ही कहा था कि वो मेरा मेहमान है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी देखभाल करूं, मैं उसकी गंदगी को धुलूं। अबू बकर तुम इसको हाथ नहीं लगाना, इतना सुनना था कि मेरे भाई वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, इस्लाम को कबूल कर लिया। इसी तरीके से सन 8 हिजरी के अंदर जब मक्का फतेह होता है,
सन 8 हिजरी के अंदर जब मक्का को फतेह किया जाता है मेरे भाई, जो वही मक्का जिस मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कोड़े, जिस मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, वही मक्का जिस मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मों पर कूड़ा डाला गया, वही मक्का जिस मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें रची जाती थी, वही मक्का जिस मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, आपको हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। मेरे भाइयों, वही मक्का जिस मक्का में हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर कई मन का पत्थर रख करके उनको चीखने और चिल्लाने पर मजबूर किया गया, वही मक्का जिस मक्का के अंदर हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, वही मक्का जिस मक्का के अंदर हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुल्म, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, वही मक्का जिस मक्का में हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शर्मगाह में बर्छी मार करके उनको शहीद कर दिया गया। मेरे भाइयों, आज मक्का फतेह हो चुका है, सन 8 हिजरी का वाक़या है और तारीख इस बात पर शाहिद है, तारीख इस बात पर गवाह है कि जब भी कोई कर्नेल, जब भी कोई जर्नल, जब भी कोई लीडर और रहनुमा किसी बस्ती में किसी बस्ती को फतेह करता है, किसी मुल्क को फतेह करता है और जब उसमें दाखिल होता है तो वहां की इंसानियत खाको खून में तड़पने लगती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, माएँ बेवा हो जाती हैं, औरतों का सुहाग उड़ जाता है। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को फतेह करते हैं, अपनी ऊँटनी पर सवार हैं, अपनी ऊँटनी पर सवार हैं, पेशानी झुकी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दाखिल हो गए, ये ऐलान कर दिया कि मक्का के लोगों, जो लोग अपने हाथ को जंग से रोक लें उनके लिए अमन व अमान है, जो लोग अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाएं, दरवाजे को बंद कर लें, ऐसे लोगों के लिए भी अमन व अमान है, जो लोग बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाएं, ऐसे लोगों के लिए भी अमन व अमान है, जो लोग हकीम बिन हिज़ाम के घर या अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएं, ऐसे लोगों के लिए भी अमन व अमान है, जो यहाँ से भागना चाहे भाग सकता है, उसका पीछा नहीं किया जाएगा, उसके लिए भी अमन व अमान है। इतने में जोश में आकर के हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ऐलान कर देते हैं, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो बोटी बोटी करने का दिन है, आज तो टुकड़े टुकड़े करने का दिन है, आज तो कीमा बनाने का दिन है, आज जो तुमने माजी के अंदर हमारे ऊपर जुल्म ढाया था, उस जुल्म का इंतकाम लेने का दिन है, आज तो तुमसे बदला लेने का दिन है। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान कर रहे हैं कि अबू जहल के शागिर्दों, अय अबू लहब के चेलों, माजी के अंदर तुमने हमारे ऊपर बहुत जुल्म ढाया था, माजी के अंदर जो तुमने जुल्म की वो आग लगाई थी, आज उस आग को बुझाने का दिन है, जो तुमने हमारे ऊपर जख्म लगाया था उस जख्म पर मरहम रखने का दिन है। हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जुमले को सुनते हैं, आपके कानों से ये जुमले जब टकराते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देते हैं, अय अबू साद, नहीं, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज बोटी बोटी करने का दिन नहीं है, आज टुकड़े टुकड़े करने का दिन नहीं है, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो लोगों को माफ करने का दिन है, आज लोगों पर रहमो शफकत का दिन है, आज एक दूसरे को अफ़व दरगुजर करने का दिन है, आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। जाओ मक्का की गलियों में ऐलान कर दो, उन बच्चों से बता दो कि आज बच्चों, तुम्हें हम यतीम बनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यतीमों का मसीहा बनने के लिए आए हैं। जाओ मक्का की उन माओं से कह दो कि ऐ मक्का की माओ, हम तुम्हारी ममता छीनने के लिए नहीं आए हैं, ऐ मक्का की बीवियों, हम तुम्हारा सुहाग गुजारने के लिए नहीं आए हैं, ऐ मक्का की बहनों, हम तुम्हारे सर से दुपट्टा उतारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उतरे हुए दुपट्टे को हम संभालने के लिए आए हैं। जाओ मक्का की उन बहनों से कह दो, हम तुम्हारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, सारे के सारे कुफार और मुशरिकीन जमा हो जाते, इकट्ठा हो जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ये ऐलान कर देते हैं, इज़हबू अंतुम तलका ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ मक्का के लोगों, जाओ तुम सब के सब आजाद हो, आज तुमसे बदला नहीं लिया जाएगा, आज जाओ मैं तुमको माफ कर देता हूँ, गरचे तुमने हमारे ऊपर जुल्म बढ़ाया, हमारे ऊपर कूड़े बहाए, हमारे ऊपर जिस्मों के ऊपर तुमने वो झुलिया ला करके डाली, लेकिन जाओ
آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا, کسی قسم کا تم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا, جاؤ میں نے تم کو سب کو معاف کر دیا. میرے بھائیوں, ہندا آتی ہے, ہندا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ میں نے تم کو بھی معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل وحش بن حرب آتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کہتے ہیں جاؤ میں نے تم کو بھی معاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحش بن حرب سے کہتے ہیں اے وحش بن حرب, جو غزوہ احد کے دن جو واقعہ پیش آیا تھا, جو تم نے ہمارے چچا کو قتل کیا تھا, وہ واقعہ ہمیں ایک بار سناؤ. میرے بھائی وحش بن حرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جس طریقے سے انہوں نے قتل کیا تھا اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر کے رونے لگتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں, اور ایک جملہ کہتے ہیں اے وحشی میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن آج سے تو میرے سامنے نہ آنا, کیونکہ جب بھی تو میرے سامنے آتا میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے, میرے چچا کی وہ تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جاتی ہے. میں نے تجھ کو معاف کر دیا لیکن آج کے بعد تو میرے سامنے نہ آنا. میرے بھائیوں, اس طریقے کے واقعات آپ کے سامنے بہت سارے واقعات ہیں. کون کون سے واقعات میں آپ کے سامنے چھوڑوں, بس مقصد صرف اتنا ہے کہ میرے بھائیوں یہ سارے واقعات ہم نے سن لیا. اب ذرا تصور کیجئے, ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے بھائی کو معاف کیا کہ نہیں کیا. کیا ہم سے ہمارے پڑوسی سے گزشتہ سال جو جھگڑا ہوا تھا کیا ہم نے اس کو ختم کیا کہ نہیں ختم کیا. ہمارے رشتہ داروں کے درمیان میں جو قطع تعلقی کی جو دیوار کھڑی ہوئی تھی اس دیوار کو ہم نے گرایا کہ نہیں گرایا. ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. واقعات ہوتے ہیں صرف اسی لیے کہ دلوں کو جھنجھوڑا جائے, اور جھنجھوڑ کر کے جو دشمنیاں ہیں, جو کینہ اور کپٹ ہے, جو بغض اور حسد ہے, ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے. میرے بھائی اور بہت سارے واقعات ہیں, وقت ختم ہو چکا ہے, بہت سارے واقعات میں اب اس طرف نہیں جانا چاہتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 عادتوں پر میں نے روشنی ڈالی ہے. میں نے کہا نا کہ اگر پوری زندگی کیا ہے, پورا سال صرف اسی پر خطبہ دیا جائے تو پورے سال کا خطبہ صرف کیا ہے, جمعہ پورا سال مکمل ہو سکتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل نہیں کیا جا سکتا. حضرات گرامی, یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آئیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیدا کر دے. اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان پر اسلام پر زندہ رکھ, اور اگر ہماری خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.